Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine and welcome to another lecture. As you can see that I am having your book and it is unit 9 comprehension on page number 40. So we will start a new unit today, that is unit 9, after finishing unit 8 and all the written work of that unit. Well, unit 9 is a poem. It's about a caterpillar and a butterfly, their conversation with each other. You will enjoy it because it's a very beautiful and very exciting poem. What the butterfly says and what the caterpillar replies, it's very interesting to know. So dear students, open your books, take out your pencils with yourselves. We will start reading the poem and then we will explain it line by line. Alright students, so it is unit 9, as you can see. Come to unit 9 comprehension and it's on page number 40. What is the page number? 40. Unit 9, page 40, and the unit name is The Caterpillar and the Butterfly. What is the name? The Caterpillar and the Butterfly. So dear students, you know what's a caterpillar? And I know you all know what's a butterfly, okay? But you know what's a caterpillar? Yes, it's a larva of butterfly. Larva किस चीज़ को बोलते हैं? What is a larva then? Larva is the immature form of an insect that completely differs from the adult one. मतलब ये कि लार्वा जो होता है या कैटरपिलर जो होता है वो एक इंसेक्ट का इमेच्योर फॉर्म या बहुत अर्ली फॉर्म होता है, वर्म लाइक. एक इंसेक्ट जब फुल इंसेक्ट बनता है, जिस तरह हम उसको देखते हैं, फॉर एग्जांपल जो बीज हो गई या फ्लाइज हो गई, ड्रैगन फ्लाइज, ओके, या बटरफ्लाइज. सो ये हम जिस शेप में देखते हैं, पहले ये इस शेप में नहीं होते. जब ये एग से निकलते हैं, सही है, तो इनके एडल्ट बनने में, इनके फुल यंग होने में बहुत स्टेजेस आती हैं. उस स्टेज में से एक स्टेज होता है लार्वा. और लार्वा क्या स्टेज होता है? इसमें ये इंसेक्ट वर्म लाइक होता है, वर्म की शेप का, ओके. जिस तरह कीड़ा होता है उस तरह की शेप का होता है. उसकी विंग्स नहीं होती, उसके लेग्स वगैरह नहीं होते, सिर्फ एक सॉफ्ट सी बॉडी होती है, वर्म लाइक. सो उसको हम कैटरपिलर या लार्वा बोलते हैं. और जब ये फुल एडल्ट बन जाता है, कंप्लीट फॉर्म में आ जाता है, तो फिर या तो ये तो बी बनता है, या एंट, या ड्रैगन फ्लाई, या बटरफ्लाई. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ कैटरपिलर. इट्स द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई. और लार्वा क्या होता है? इट्स द वर्म लाइक फॉर्म ऑफ एन इंसेक्ट. जब एक इंसेक्ट फुल इंसेक्ट नहीं होता, वो लार्वा के फॉर्म में या वर्म के फॉर्म में होता है, जिसकी विंग्स, लेग्स वगैरह नहीं होती, सिंपल सॉफ्ट सी बॉडी होती है, उसको हम लार्वा बोलते हैं. ऑल राइट. So the poem is about the conversation of a caterpillar and a butterfly. Caterpillar क्या है? It's the larva of butterfly. यानी caterpillar young butterfly है. जब ये caterpillar टाइम गुजरने के साथ साथ डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे ये किस चीज़ में चेंज होगा? यस, बटरफ्लाई में. ओके, सो ये बटरफ्लाई में चेंज हो जाएगा. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द पोएम एंड द फर्स्ट स्टेंजा इज लाइक दिस. A caterpillar green and fat upon a juicy cabbage sat, eating all day through, and when a dazzling butterfly, creamy white, came sailing by, they both said, "How do you do? I hope you like my powdered wings. They are just the very latest things," said Butterfly in glee. "And see my tongue, so long and curled, the finest one in all the world, a treat for you to see." Poor caterpillar, you can't sip the nectar from a flower's lip, nor fly the summer through. The caterpillar raised his head. "Don't pity me," he rudely said.
I am better off than you. I eat all day. I sit and stare. I want no flying through the air. I like to creep and crawl. A butterfly I would hate to be. It's best to be a grub like me, a caterpillar small. Then all the elves who listened near laughed like anything to hear the quarrel twixt the two. But neither the grub nor butterfly could ever guess the reason why. I know it though. Do you? Okay, dear students, this is the poem The Caterpillar and the Butterfly. Now we will come to the first stanza and explain it line by line. And same we will do with the whole poem. The first line says, a caterpillar green and fat upon a juicy cabbage sat, eating all day through. ओके एक कैटरपिलर है ग्रीन एंड फैट. ग्रीन मतलब उसका कलर क्या है, ग्रीन है. एंड द कैटरपिलर इज फैट और बहुत मोटा है दैट कैटरपिलर. ओके अपॉन अ जूसी कैबेज सेट एंड वेयर ही इज सिटिंग ऑन अ जूसी कैबेज. व्हाट इज अ कैबेज? कैबेज इट्स अ वेजिटेबल और उर्दू में इसको कहते हैं बन गोभी. ओके वी नॉर्मली यूज दैट कैबेज इन आवर सैलड. सो कैटरपिलर वो जो ग्रीन एंड फैट कैटरपिलर है वो किस चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है, जूसी कैबेज. जूसी किस चीज़ को कहते हैं, रसदार या रसीला, जिसमें रस बहुत ज़्यादा हो या जूस ज़्यादा हो. सो दैट कैबेज इज़ जूसी एंड ही इज सेटिंग ऑन दैट कैबेज ईटिंग ऑल डे थ्रू. और व्हाट इज़ द कैटरपिलर डूइंग? वो क्या कर रहा है सारा दिन? वो सिर्फ खाता है. ओके वो सारा दिन सिर्फ खाता है. So we know something about the caterpillar, that he is green, that his color is green, and that he is fat and he is sitting on a juicy cabbage. And what is he doing all day? He is eating all day. Okay, so a caterpillar green and fat upon a juicy cabbage sat. Sat means बैठना. Okay, ये sit का second form है. जो verb है बैठना उसका second form है. So कैटरपिलर ग्रीन मोटा है और सब्ज है और फैट यानी मोटा है और वो एक रसदार बन गोभी के ऊपर बैठा हुआ है ईटिंग ऑल डे थ्रू. और वो सारा दिन क्या करता है, ही इज़ ईटिंग ऑल डे, खाता है. नाउ व्हेन अ डेजलिंग बटरफ्लाई. व्हाट डेजलिंग मीन्स? डेजलिंग मीन्स हैरत अंगेज़ या बहुत रोशन, बहुत खूबसूरत, बहुत एक्साइटिंग. ओके एंड व्हेन अ डेजलिंग बटरफ्लाई. अब जब एक हैरत अंगेज़ तितली या एक बहुत रोशन तितली, बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई, किस कलर की, क्रीमी वाइट. ओके फुल वाइट नहीं, क्रीमी वाइट, केम सेलिंग बाय. दे बोथ सेड हाउ डू यू डू. और जब एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई किस कलर की, क्रीमी वाइट, वो आई सेलिंग बाय, उसके पास आई. दे बोथ सेड, इन दोनों ने कहा. बोथ कौन दोनों ने? यस कैटरपिलर और बटरफ्लाई ने एक दूसरे से कहा हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं. ओके दे बोथ ग्रीटेड ईच अदर. सो एक डेजलिंग बटरफ्लाई क्रीमी वाइट कलर की वो उसके पास आई. ओके ऐसे ही उड़ती हुई आई. एंड व्हेन दे बोथ सॉ ईच अदर. सो इन दोनों ने एक दूसरे को कहा हाउ डू यू डू. दिस इज द फर्स्ट stanza. नाउ मूव टू द सेकंड वन. Now the butterfly says, I hope you like my powdered wings. They are just the very latest things, said butterfly in glee. Glee means खुशी. अब butterfly ने खुशी में कहा या excitedness में कहा I hope, मुझे उम्मीद है, you like my powdered wings, तुम्हें मेरे powdered wings बहुत पसंद हैं, तुम बहुत पसंद करते होगे इसे. नाउ विंग्स का क्या मतलब? विंग्स बोलते हैं परों को या पंख. ओके बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं उनको उर्दू में क्या कहते हैं, पंख और पाउडर. अच्छा आपने कभी अगर किसी बटरफ्लाई को पकड़ा हो डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू ऑल मस्ट डू दैट, आप ये लोग एक्टिविटी करते होंगे स्पेशली समर में, जब आप एक बटरफ्लाई को पकड़ते हैं और उसके विंग्स के ऊपर, हियर आर द विंग्स, जब इन विंग्स के ऊपर रब करते हैं तो आपके
उसके हाथ में पाउडर सा आता है, सही है, शाइनी टाइप का पाउडर होता है जो उस बटरफ्लाई के जो विंग्स है उसको एक्चुअली कलर देते हैं। सो उसको पाउडर्ड विंग्स बोलते हैं। ये जो पाउडर होता है ये एक्चुअली स्केल्स होते हैं, ओके। और ये जो पाउडर है ये शाइनी होता है और इसी की वजह से बटरफ्लाई के जो विंग्स है उसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डिफरेंट कलर्स आते हैं। नाउ यू कैन लुक एट द पिक्चर हियर, रेड, ऑरेंज और देन रेड एंड देन there is black and blue and all the colors are here. There you can see the creamy white color over here. So ये जो different colors है ये इन्हीं पाउडर की वजह से हैं। When you rub the wings of a butterfly, you can have that powder on your fingers, on your fingertips as well. I hope you have experienced it. ये जो powder wings है butterfly के वो उसके बारे में कह रहा है caterpillar से। As you can see, the caterpillar has no wings, okay? It's just a worm, okay? It's just a worm. It has no wings. So butterfly क्या करती है, caterpillar से कहती है कि I hope you like my powdered wings. तो मेरे ये खूबसूरत जो पर है ये बहुत पसंद होंगे। एंड दे आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग्स, और ये ताज़ा तरीन चीज़ें हैं, मतलब कि ये बहुत खूबसूरत है। दे आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग्स। ये कलर बहुत डिफरेंट है, मेरे पंख जो है वो बहुत डिफरेंट है। यू विल नॉट सी सच विंग्स विद एनी अदर इंसेक्ट्स। आई एम जस्ट हैविंग दिस, ओके। सेड बटरफ्लाई इन ग्ली। लेटेस्ट मीन ताज़ा तरीन, ग्ली मीन्स खुशी। बटरफ्लाई ने खुशी से कहा कि तुम्हें मेरे पाउडर्ड विंग्स जो है वो बहुत पसंद होंगे। एंड देन विंग्स के बाद क्या कहा, एंड सी माई टंग, और मेरी ज़ुबान देखो, ओके। एंड सी माई टंग सो लॉन्ग, इतनी लंबी, एंड कर्ल्ड, और बिल काती हुई, ओके। यू नो व्हाट इज़ कर्ल? आपके सम ऑफ यू मस्ट हैव कर्ली हेयर, ओके, जिसमें बल हो, सो उसको कर्ल बोलते हैं। जो बटरफ्लाई के टंग है वो लॉन्ग भी है और वो कर्ल्ड भी है, उसमें बल भी है, ओके, इस तरह की, ओके। ये जो है ये चीज़ इसको हम कर्ल बोलते हैं, इसमें बल है, ओके। सो बटरफ्लाईज टंग इज़ लाइक दिस। द फाइनेस्ट वन इन ऑल द वर्ल्ड। फाइनेस्ट मीन उम्दा, बेहतरीन। ये जो मेरी टंग है ये पूरी दुनिया में फाइनेस्ट है, मतलब इस जैसी कोई दूसरी टंग हो ही नहीं सकती, ओके। ये बेहतरीन है। अ ट्रीट फॉर यू टू सी, और ये तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ है देखने के लिए, ओके। इट्स अ ट्रीट फॉर यू टू सी। ट्रीट मीन्स एक उम्दा चीज़ है, एक देखने लायक चीज़ है और आप इसको ज़रूर देखें। सो द बटरफ्लाई, ओके, the butterfly is talking about his powdered wings and his long and curled tongue, कि ये दोनों चीज़ें उसके पास हैं, दुनिया में और किसी के पास नहीं है, और ये सबसे लेटेस्ट एंड फाइनेस्ट थिंग्स हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, what he say? Poor caterpillar, बेचारा caterpillar, you can't sip the nectar from a flower's lip. तुम एक फ्लावर से, एक फूल से, एक फ्लावर से उसका नेक्टर नहीं पी सकते, उसका जो शहद है, उसका जो स्वीट पार्ट है वो नहीं पी सकते। पुअर कैटरपिलर यू कांट सिप, तुम नहीं पी सकते। सिप को उर्दू में कहते हैं गोंद भरना, ओके। व्हेन यू टेक सिप्स फ्रॉम द टी, जब आप चाय के गोंद भरते तो हम उसके लिए सिप का वर्ड यूज़ करते हैं। दैट यू कांट सिप, कि तुम गोंद नहीं भर सकते या पी नहीं सकते। द नेक्टर, नेक्टर शहद या अमृत, ओके। फ्लावर्स में जो फ्लावर्स के ऊपर इंसेक्ट्स जो है या मक्खियाँ क्यों बैठती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, नेक्टर होता है, यानी अमृत, ये शहद होता है जो स्वीट से जूसी मटेरियल होता है, उसके लिए वो उससे सिप करती है, ये इनका फूड होता है, ओके। द नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर्स लिप, एक फूल से, ओके, एक फूल से आप उसका अमृत नहीं पी सकते। नॉर फ्लाई द समर थ्रू, और आप समर्स में फ्लाई भी नहीं कर सकते, उड़ भी नहीं सकते। सो बटरफ्लाई अब अपनी तारीफ़ करने के बाद क्या करिए, कैटरपिलर को उसकी कमज़ोरियाँ बता रही, उसकी वीकनेसेस बता रही हैं कि आपके पास ये नहीं, आपके पास वो नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। पुअर कैटरपिलर, आप नहीं पी सकते द नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर्स लिप, और आप क्या नहीं कर सकते, आप समर में उड़ भी नहीं सकते, ओके।
ओके, नाउ व्हाट द कैटरपिलर रिप्लाइज। ओके, हमने बटरफ्लाई की बातें सुन ली कि वो क्या कह रही है अपने बारे में। नाउ कम टू कैटरपिलर, व्हाट ही रिप्लाइज टू बटरफ्लाई। नाउ द कैटरपिलर रेज्ड हिज हेड। कैटरपिलर ने अपना सर उठाया, रेज मीन उठाना, एंड व्हाट ही सेज, डोंट पीटी मी, मेरे ऊपर तरस ना खाओ। पीटी मीन्स तरस खाना, किसी से हमदर्द नहीं करना, सही है। डोंट पीटी मी, मेरे ऊपर तरस ना खाओ। ही रूडली सैड, उसने बेदर्दी से कहा। रूडली मीन्स अच्छे अंदाज में नहीं, ओके, बहुत गुस्सीले अंदाज में कहा। आई एम बेटर ऑफ देन यू, मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। ओके, कैसे बेहतर हूँ, वी विल सी। द कैटरपिलर सेज, आई ईट ऑल डे, मैं सारा दिन खाता हूँ। आई सिट, मैं बैठता हूँ। एंड स्टेयर, और देखता रहता हूँ। आई वॉन्ट नो फ्लाइंग थ्रू द एयर, मुझे हवा में नहीं उड़ना, मुझे कोई ख्वाहिश ही नहीं है हवा में उड़ने की। आई लाइक टू क्रीप एंड क्रॉल, मुझे रेंगना पसंद है। नाउ क्रीप ऑल्सो मीन्स रेंगना एंड क्रॉल ऑल्सो मीन्स रेंगना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्रीप जब आप फुल बॉडी, जो आपका लोअर पार्ट है, जब इंसेक्ट्स या वर्म्स ज़मीन पर क्रॉल करते हैं, जिस तरह वो जाते हैं, आपने उनकी मूवमेंट देखी होगी ना, उनका जो लोअर पार्ट है फुल वो ज़मीन के साथ लगता है, जिस तरह एक स्नेक यानी कि सांप ज़मीन पे जाता है, ओके, या दीवार पे चढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, या इस तरह नॉर्मली भी एक्सपीरियंस किया होगा। सो द वे दे मूव ऑन द ग्राउंड, उसको क्रीप बोलते हैं। ओके, जब आपका लोअर पार्ट जो होता है बॉडी का वो फुल ज़मीन के साथ लगता है और आप उसके ज़रिए मूव करते हो फॉरवर्ड। व्हाट इज़ क्रॉल, क्रॉल भी क्रीपिंग के एक टाइप है, लेकिन इसमें आप अपने जो घुटने हैं और लेग्स हैं, यू यूज़ योर नीज एंड योर लेग्स टू क्रॉल, जिस तरह बेबीज़ करते हैं। ओके, बेबीज़ किस तरह क्रॉल करते हैं, वो अपने हाथ और पाँव यूज़ करते हैं। ओके, उसको क्रॉल कहते हैं। एंड क्रीप जब इंसेक्ट्स अपनी लोअर पार्ट के ज़रिए, वर्म्स जिस तरह ज़मीन पे मूव करती है, उसको क्रीप बोलते हैं। सो व्हाट द कैटरपिलर इज सेइंग, दैट ही लाइक्स टू क्रीप एंड क्रॉल ऑन द ग्राउंड, ही वॉन्ट्स नो फ्लाइंग। अ बटरफ्लाई आई वुड हेट टू बी, और एक बटरफ्लाई होना, आई वुड हेट टू बी, मुझे इस चीज़ पसंद ही नहीं है कि मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ओके, आई एम बेटर टू बी अ कैटरपिलर, इट्स बेस्ट टू बी अ ग्रब लाइक मी, और मेरे लिए क्या बेहतर है, टू बी अ ग्रब। ग्रब किस चीज़ को बोलते हैं, इट्स द कॉमन नेम फॉर अ लार्वा ऑफ एनी इंसेक्ट। ओके, इंसेक्ट्स के जो लार्वा है, ओके, वर्म लाइक जो उनका मटेरियल है या जो बॉडी है, उसको ग्रब बोलते हैं। और फिर हर एनिमल, हर जो इंसेक्ट है उसके जो उसका ग्रब या लार्वा को स्पेसिफिक नेम बोलते हैं। जिस तरह के बटरफ्लाई का जो ग्रब है या लार्वा है उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। सो कैटरपिलर इज़ हैप्पी टू बी अ ग्रब, अ कैटरपिलर स्मॉल, एक छोटा कैटरपिलर। सो व्हाट द कैटरपिलर इज सेइंग, कि ही लव्स to be a caterpillar because he eats all day, he sits and stares, and he wants no flying through the air. He loves to crawl and creep and crawl, and he hates to be a butterfly. Okay, and he loves to be a caterpillar. All right, he's proud of his body, he don't want to be a butterfly. Now this conversation, okay, the conversation between the caterpillar and the butterfly, all the animals nearby, they are listening to it. Okay, in the forest or in the field, or जहाँ भी ये दोनों है उनके नज़दीक या करीब जो एनिमल्स है, दे आर लिसनिंग टू इट, एंड ऑल्सो द एल्व्स। ओके, देन ऑल द एल्व्स हु लिसनड नियर, लिसनड मीन्स सुनना, नियर करीब। एल्व्स किस चीज़ को बोलते हैं, सुपर नेचुरल क्रिएचर्स होते हैं, जिस तरह जिन होती हैं, परियाँ होती हैं, सही है। सो एल्व्स भी दे आर सुपर नेचुरल क्रिएचर्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, दे एग्जिस्ट बट यू कांट सी देम। सो जो सारे एल्व्स थे वो जो करीब सुन रहे थे, लाफ्ट, वो हंसे, लाइक एनीथिंग टू हेयर द क्वेरल ट्विक्स्ट द टू। ओके, क्वेरल बोलते हैं झगड़े को, एंड ट्विक्स्ट, ट्विक्स्ट का ये शॉर्ट फॉर्म है बिटविक्स्ट का, और इसका मतलब है बिटवीन। ओके, यानी कि दरमियान, जो
कैटरपिलर और बटरफ्लाई के दरमियान झगड़ा हो रहा है, उसको सुनते हुए कौन हंसा? एल्व्स, द सुपरनेचुरल क्रिएचर्स। वाई दे लाफ्ड? बट नीदर द ग्रब नॉर बटरफ्लाई, लेकिन ना तो ग्रब को पता है नॉर बटरफ्लाई, ना बटरफ्लाई को पता है ग्रब द कैटरपिलर। ओके, एज आई टोल्ड यू it's the larva of an insect. Could ever guess the reason why? वो कभी भी ये गेस नहीं कर सकते कि ये जो एल्व्स है ये क्यों हंस रही है इन दोनों के झगड़े पे। आई नो इट दो, मुझे पता है। डू यू, क्या आपको पता है? ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग द होल पोएम, कैन यू गेस व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ फॉर द एल्व्स टू लाफ, कि वो क्यों हंसे इन दोनों के झगड़े को सुनते हुए? So the reason is clear कि caterpillar would eventually become a butterfly. Okay, और butterfly सबसे पहले क्या थी? Butterfly was a caterpillar first. Okay, so इन दोनों के ये जो झगड़ा है इसका कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि बटरफ्लाई उस कैटरपिलर के स्टेज से गुजरी है। ही वॉज फर्स्ट, द बटरफ्लाई वॉज फर्स्ट अ कैटरपिलर, इस तरह की थी द कैटरपिलर, बटरफ्लाई जो थी, और फिर ये बन गई। ओके, नाउ दिस कैटरपिलर ही डोंट वांट्स टू बी अ बटरफ्लाई, लेकिन इवेंचुअली ही विल बिकम अ बटरफ्लाई। Okay, but they don't know what their future would be, and nor the butterfly know what his past was, कि वो माजी में क्या थी और अब क्या है, and nor the caterpillar knows कि उसका future क्या होगा, but the elves know, उनको पता है। okay, उनको पता है कि इनके साथ क्या होगा और ये पहले क्या थे। so they just laughs, उनकी बेवकूफ़ी पे इनकी सिलीपन पे वो हंस, the elves are laughing, उनको पता है कि इनके साथ क्या होगा। सो ये जो कॉन्वर्सेशन इसको सुनने के बाद द एल्व्स दे जस्ट लाफ्ड। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न वाई दे वर लाफिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ उर्दू मीनिंग्स है। आपने उस अपने बुक में पेंसिल के साथ उस वर्ड के ऊपर ये जो वर्ड मीनिंग्स है ये लिखने हैं। ओके, फर्स्ट वन है कैबेज, कैबेज बंद गोभी, सेट बैठना, डेजलिंग हैरत अंगेज़, विंग्स पंख, लेटेस्ट ताज़ा तरीन, ग्ली खुशी, फाइनेस्ट बेहतरीन, सिप गोंट बढ़ना, और नेक्टर अमृत या शहद को बोलते हैं। ओके ओके, पिटी तरस खाना, रूडली बेदर्दी से, स्टेयर देखना, क्रीप रेंगना, ग्रब a worm-like larva of certain insects. ग्रब किस चीज़ को बोलते हैं? A worm-like larva of certain insects. Elves, supernatural creatures. Elves का क्या मतलब है? Supernatural creatures. Quarrel, झगड़ा, and twixt. Twixt फुल शॉर्ट फॉर्म है betwixt का, और इसका मतलब है between, यानी कि दरमियान। Twixt, betwixt, और इसका मतलब है between. Okay, so we are done with the reading and explanation of unit 9. It was a poem. Okay, hope you enjoyed it. After this we will move to the written work of this poem, but first you have to read the poem very carefully, write the meanings over it, and get the main idea out of it. Okay.